this is the lecture number 5 for the chapter sequence series for the class 11th. In the last lecture, we have discussed the question number 14 of the second exercise. First of all, I am doing the question number 16 because it is related to question number 14. So before doing this question number 16, you must do the question number 14 once more and then do this question number 16. So what is given in question number 16? Between 1 and 31, m numbers have been inserted. M, that is A1, A2, A3 and up to AM. M numbers has been inserted such that the 7th and m minus 1th number, that is A7 and AM minus 1, the ratio is 5/9. You have to find the value of m. ये m पता करना है. तो आपको m तो A7 और AM minus 1 चाहिए. आपको A7 और A minus m minus 1 की नंबर की रेशो 5/9 गिवन है. Now, if you see it carefully, A1 to AM, there are m terms, so m plus 1, m plus 2. So, there are m plus 2 terms. The m plus 2th term here is 31. दो टर्म एक्स्ट्रा हो जाती हैं और कुछ नंबर आपके बीच में इंसर्ट करने हैं. तो आप इससे m plus 1 टर्म t m plus 2th टर्म हो जाएगा. a plus m plus 2 minus 1 into d is equal to 31. तो फर्स्ट टर्म 1 है, ये m plus 1 into d, तो हमारे पास इससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा विच इज कमिंग आउट टू बी 30/m plus 1. द कॉमन डिफरेंस इज 30/m plus 1. कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म इज 1. नाउ a1 here is the second term. See the pattern. a2 here will be the third term. a3 will be the fourth term and so on. a7 will be its 8th term. तो आप इसकी 8th term पता करिए जो कि a7 है. तो a plus 7d, आप इसमें a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपकी है a7 will be 1 and common difference is 30/m plus 1. This is the a7, 7th term which is inserted between these two. Now similarly am minus 1, because you have to ratio between this game, it will be the one more, that is mth term. Mth term will be a plus m minus 1 into d. And a is first term, m minus 1 into d is 30/m plus 1. So this is the m minus 1th term and this is the a7. Now what is given? a7/am minus 1 की रेशो हमें गिवन है 5/9. रिप्लेस इट 1 plus 7 into 30/m plus 1 upon 1 plus 7 into m minus 1 upon m plus 1. Rather it is the common, the am minus 1 is 1 plus m minus 1 into 30/m plus 1 is equal to 5/9. Cross multiply it, you will get the value of m. You take your time and space to find the value of m, which is a linear equation. You will get the value of m as 14 you will get. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से इसकी वैल्यू निकालिए. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m as 14. क्रॉस लीनियर इक्वेशन आएगा m की टर्म्स में. दिस इज m plus 1. एलसीएम लेकर के ऐड करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m, विच इज द क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, लाइक दिस. Now, question number 15. 15 is given as, ये given है कि a और b के बीच में a की पावर n plus b की पावर n upon a की पावर n minus 1 plus b की पावर n minus 1, ये अर्थमेटिक मीन है. दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b and you have to find the value of n. n की वैल्यू आपको पता करनी है. It is given that this expression is the arithmetic mean between a and b. a और b के बीच में arithmetic mean है. तो जब ये arithmetic mean, आपको पता है कि arithmetic mean जो होता है एवरेज होता है फर्स्ट एंड लास्ट का. सो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट.
अगर ए बी सी तुम्हारा या ए सी बी ए पी में है तो मिडिल टर्म इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, या अर्थमेटिक मीन जो होता है दो नंबर्स का एवरेज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपको पता करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड 2a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a प्लस b into a की पावर n minus 1 plus b की पावर n minus 1. Multiply and open the bracket to find the value of n. So it will be 2a की पावर n 2b की पावर n. Multiply and open the bracket. करेंगे a into a की पावर n minus 1 a की पावर n, a into a b की पावर b n minus 1. इसको आप करेंगे b into a की पावर n minus 1 और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, you will get b की पावर n. Now this 2a की पावर n and a की पावर n कैंसिल होकर केवल a की पावर n बचेगा. This you take all the terms to the left hand side और आप 2b की पावर n में से b की पावर n माइनस करेंगे तो ये प्लस b की पावर n बचेगा. Like this. See the arrangement. I have taken all the terms to the left hand side. Now you can take a common in the first two terms. So आप a common लेंगे a की पावर 1 a की पावर n में से, तो a की पावर n minus 1 बचेगा. And when you take a common here तो it will be b की पावर n minus 1. इन दोनों टर्म में से आप b कॉमन ले सकते हैं. तो जब आप b कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a की पावर n minus 1, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर माइनस, b की पावर n में से आप b कॉमन लेंगे तो b की पावर n minus 1. तो एक तरह से फैक्टर्स हो गए. आप देखिए ध्यान से, ब्रैकेट सेम आ गया. यू कैन टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, तो इट विल बी a की पावर n minus 1 माइनस b की पावर n minus 1. आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a एंड दिस विल बी b. पुट इट इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b एंड a की पावर n minus 1 विल बी इक्वल टू b की पावर n minus 1. a इज इक्वल टू b and a की पावर n minus 1 is equal to b की पावर n minus 1. Now this is not possible. Why it is not possible? Because if these two numbers are equal, अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाते हैं तो इनके बीच में अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी देयर. तो a कैन नॉट बी इक्वल टू b. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हेयर. तो अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो a अपॉन b की पावर n minus 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1. You take b की पावर n minus 1 in the denominator of the left hand side, तो a upon b की पावर n minus 1. For 1 you can write 1 की जगह आप a upon b की पावर 0 लिख सकते हैं. For in place of 1 you can write a upon b की पावर 0 because any number having the power 0 equal to 1. तो ये 1 के इक्वल ही है. बेस सेम है तो इनके पावर को आप इक्वल लिख सकते हैं. तो n minus 1 equal to 0. बेस सेम तो पावर विल बी इक्वल, तो n विल बी इक्वल टू 1. तो n की यहाँ पर वैल्यू कितने आ गई? 1 के इक्वल आ गई. So what is given in this question? It is given that this expression is the arithmetic mean between these two. तो arithmetic mean जो होता है दोनों नंबर्स का एवरेज होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने n की वैल्यू निकालनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट ओपन करा, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले गए. शुरू की दो टर्म में a कॉमन आ रहा है, लास्ट की दो टर्म में दिस b कॉमन. बाय डूइंग सो दिस ब्रैकेट इज कमिंग आउट टू बी सेम. तो इससे कॉमन लेकर के a माइनस b विच इज इक्वल टू 0. तो a कैन नॉट बी इक्वल टू b बिकॉज इफ a एंड b आर इक्वल देन देयर कैन नॉट बी एनी नंबर और अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज टू. सो दीज कैन बी इक्वल टू ईच अदर. टेकिंग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड बाय डिवाइडिंग, 1 की जगह आप a अपॉन b की पावर 0 यू कैन राइट. द बेस इज सेम, द पावर विल बी इक्वल, तो n minus 1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1. 1 के इक्वल आ जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल ऑल्सो बी कमिंग इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द सेकेंड एक्सरसाइज. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ question number 17, read it. Somewhat easy question. A man start repaying a loan. A man start repaying a loan and of first installment is 100 and he increasing the installment by 5 every year. तो पहला installment 100 का है. easy question है. 17. पहला installment 100 का है. Next will be 105. Next will be 110 because he is increasing his installment by 5 and so on. So naturally the first term is 100, the common difference is 5. Now what you have to find in this question, you have to find what amount he will pay in the 30th installment. 30th installment कितना पेमेंट करेगा? तो it means 30th installment means 30th term you have to find. 30वां उसका कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा? तो 30th installment will be a plus 29d. तो a आपके पास 100 है
D आपके पास 5 है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 245 विल बी इट्स 30th इंस्टॉलमेंट. पहला इंस्टॉलमेंट 100 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 5 है, 105, नेक्स्ट इज 110. तो नेचुरली द 30th इंस्टॉलमेंट यू हैव टू फाइंड बिकॉज इट बीइंग आस्क्ड टू फाइंड व्हाट अमाउंट ही हैज टू पे इन 30th इंस्टॉलमेंट. 30th टर्म आपको पता करनी है. 30th टर्म इज A + 2090. ए पता है, डी पता है, यू कैन इजिली फाइंड इट्स 30th इंस्टॉलमेंट. नाउ read the question number 18 once more. What is given? It is given that the angles of a polygon, if you read it carefully, the difference between any two consecutive interior angle of a polygon is given. That is the common difference is given. If the smallest angle is 120, सबसे छोटा एंगल 120 का गिवन है. पॉलीगन में आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है. नंबर ऑफ साइड्स यू हैव टू फाइंड. Now, let the number of sides of the polygon be n. Now, because the sum of all exterior angle is equal to 360, किसी भी polygon में सारे exterior angle का sum 360 डिग्री होता है. And the smallest angle is 120. So, the angles will be, first angle ये है आपका, the next will be कितना हो जाएगा 100 it will be 125. कॉमन डिफरेंस प्लस 5 है. नेक्स्ट एंगल हो जाएगा 130, नेक्स्ट हो जाएगा 135 एंड सो ऑन. ये एंगल्स होगा इसके पॉलीगन्स के. नाउ द सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 n minus 360. इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा 180 इंटू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 360 एक्सटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स. और सम ऑफ एंगल्स आप निकाल सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 180 n - 360. a आपको पता है यहाँ पर द फर्स्ट एंगल इज 120, नंबर ऑफ साइड्स कॉमन डिफरेंस इज दिस. तो आप इसको सॉल्व करके यू कैन ईजिली फाइंड दी नंबर ऑफ साइड्स. इसको आप सॉल्व करेंगे n निकल जाएगा. क्वाड इक्वेशन को सॉल्व करिए कैसे भी, तो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 16 and 9. दो वैल्यूज आ रही हैं 16 and 9. नाउ इफ n इज इक्वल टू 16, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर आप 16 ले रहे हैं, दोनों ऑप्शन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड तो एक ही हो सकती हैं. तो द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी 135. लार्जेस्ट एंगल कितना होगा? लार्जेस्ट एंगल आपका आ रहा है 120 प्लस, मतलब nth एंगल, सबसे बड़ा एंगल a प्लस 16 - 1 इंटू d. तो a आपके पास 120 है और 15 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है. तो ये आ रहा है हमारे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 195 विच इज ग्रेटर देन 180. तो इंटीरियर एंगल कोई भी 180 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता. So therefore, which is not possible. n is equal to 16, not possible. Therefore, n की वैल्यू कितनी होगी? n will be equal to 9 only. So this is the completion of your exercise 2nd of your NCERT book. Some questions are really very good. You do those questions at least 2 times to have a very good command over this exercise. Okay, we'll discuss the next topic in the next lecture. Thank you.